Hello students, welcome to SD Learning. Today we are going to continue the chapter Rotational Dynamics. In the last lecture we discussed about the conical pendulum, maximum velocity on a curved rod, minimum velocity on a curved rod. Proper na? We discussed about maximum velocity, minimum velocity, well of depth, angle of banking of rod. We discussed all this. Okay. So that was all the UCM. But now here we are going to discuss about the non-UCM. अच्छा, UCM में मैंने आपको बताया था कि there were two acceleration, a tangential acceleration and radial acceleration, where the tangential acceleration was responsible for changing the speed of the particle and radial acceleration was responsible for changing the direction of the particle. So here we are going to discuss about the vertical circular motion. Vertical circular motion means आपके दिमाग में क्या आता है? Vertical circular motion. आपने वो बड़ा व्हील देखा, वो बड़ा व्हील देखा रहेगा, स्काई व्हील देखा रहेगा ना, बड़ा सर्कस में झूला लगता है, बड़ा बोलते हैं ना आसमानी झूला. आप देखो जब वो ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है, आप उसके अंदर बैठे हो, जब वो ऊपर जा रहा है, एट दैट टाइम स्पीड यूज टू गेट डिक्रीज. आपका स्पीड कम होता है. पर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो ना, तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज जब ऊपर जा रहा है, it is in the opposite direction of gravity. The work is been done in the opposite direction of gravity. And when it is going down, means the work is been done in the same direction of the gravity. तो ऊपर जाते टाइम स्पीड बढ़ता है और नीचे आते टाइम स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है. That is the perfect example of a vertical circular motion. और you can say non-UCM means स्पीड बढ़ रहा है और कम हो रहा है, means ये non-UCM का एग्जाम्पल है. And here the tangential acceleration is present. In UCM only the radial acceleration was present. मैंने आपको लास्ट बहुत सारे जो लेक्चर्स लिए उसमें बताया है. In UCM radial acceleration was the only acceleration which was present. Tangential acceleration was not present. But in non-UCM both the acceleration are going to present because here the speed of the particle is going to change. It means the tangential acceleration will be present here. So here we are going to discuss about the vertical circular motion. Very important one. Okay. Here I have drawn one diagram. See. यहाँ पर 3 पॉइंट है. लोएस्ट पॉइंट, ओके, ये वर्टिकल. मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, उसके एंड में स्टोन टाइट किया, स्ट्रिंग उसके एंड में स्टोन टाइट किया और उसे ऐसा घुमा रहा हूं. ओके, ऐसे वर्टिकल सर्कल में उसे घुमा रहा हूं. तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट स्टोन कहां पर, फर्स्ट स्टोन का पोजीशन आप कहां पर रखोगे? डाउनवर्ड ना. फर्स्ट ऐसे रखेगा और ऐसे आपको घुमाना है, याद रखो, ऐसा रखा है और ऐसा आपको घुमाना है. तो फर्स्ट इसका पोजीशन किधर पे है? डाउनवर्ड, लोएस्ट पोजीशन पे. दिस इज द लोएस्ट पोजीशन, दिस इज द मिडवे पोजीशन एंड दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन. Lowest, midway and highest. On these three positions, lowest, midway and highest, we have to discuss about the tension. We have to derive the formula of tension. We have to calculate the tension, and we also have to calculate the velocity at lowest point, midway point and highest point. These are very important thing. तीनों पॉइंट पे हम लोग टेंशन निकालेंगे, लोएस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे, और वेलोसिटी निकालेंगे लोएस्ट पॉइंट और मिडवे पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे. वी कैन ऑल्सो डिराइव द total energy according to law of conservation of energy. Total energy at lowest point, midway point and highest point will be same, but kinetic energy और potential energy lowest पे और midway पे और highest पे different रहेगा, but total energy same रहेगा because it have to follow the law of conservation of energy. So first I am going to derive about the tension at lowest point, midway point and highest point. After that we will derive the velocity. Okay, so we are seeing this derivation for tension. प्रॉपर ये लोएस्ट पॉइंट है, ध्यान दो, ये मिडवे और ये हाईएस्ट. मैं इसको ना रेफरेंस ले रहा हूं, मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया ना, जब मैंने ऐसे सर्कल था, पत्थर ऐसा था, स्टोन, तो मैंने यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो थीटा यहां पर कितना रख रहा हूं? 0 एंगल है. 0 से यहां पर आया 90 से स्ट्रेट लाइन हो गया 180. 0 याद रखो, मैं लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस ले रहा हूं, थीटा 0, 90, 180. प्रॉपर. ओके, एंड दिस इज परफॉर्मिंग नॉन यूसीएम. ये नॉन यूसीएम है. ये स्टोन इज परफॉर्मिंग नॉन यूसीएम मोशन. अच्छा, तो देखो स्टोन ये ऐसा घूम रहा है, इस तरीके से इस सर्कल में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. तो स्टोन इज परफॉर्मिंग एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन. अच्छा, अब मैंने इस पॉइंट पे एक पी पॉइंट, एक एनी रैंडम पॉइंट पे पी पे मैं पढ़ने जा रहा हूं कि स्टोन के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस एक्ट कर रहा है. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर चीज का आपको डेरिवेशंस में, सम्स में ज्यादा करके एफबीडी बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम.
आप free body diagram means you have to calculate the forces which are acting on a particle. If you are able to calculate that, you will able to get the equation, and from that you can derive the derivation. Proper na? So here at point P, एक random point P पे, where the angle is theta with the center, where the angle is theta with the center. पार्टिकल देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर पहुंचा, मैंने P पे ना, यहां पर मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं P पे, और एंगल कितना है थीटा, यहां पर एंगल कितना है 0, यहां पर 90, यहां पर 180, इस पे मैं पढ़ने जा रहा हूं पॉइंट P पे. प्रॉपर. अच्छा, अब स्टोन के ऊपर, स्टोन का कुछ तो mg है विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखो मैंने इसे रिजॉल्व किया है, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको, mg नीचे की तरफ मैंने लिया. स्टोन यहां पर है, ये स्टोन है, स्टोन का mg नीचे. प्रॉपर. अच्छा, नाउ अब मैं इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, देखो आप प्रॉपरली, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये रेडियस वाले लाइन को, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, अच्छा अंदर की तरफ क्या एक्ट करेगा, अंदर की तरफ टेंशन. व्हाट विल एक्ट, टेंशन, क्योंकि स्टोन यहां पर और ये स्ट्रिंग है, ये पूरा स्ट्रिंग है, सब जो रेडियस दिख रहा है आपको स्ट्रिंग है, एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इन द स्ट्रिंग. तो स्टोन यहां पर है, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इन द स्ट्रिंग, देखो इन द स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है. यहां पर देखो जब स्टोन रहेगा तो टेंशन एट मिड पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट. प्रॉपर ना. सो टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट. आप देखो स्टोन अगर यहां पर है तो टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी इन द स्ट्रिंग, टेंशन मिडवे पॉइंट पे है. यहां सपोज स्टोन यहां पर है, सपोज स्टोन यहां पर आ गया मिडवे पॉइंट पे, तो टेंशन कहां रहेगा उसका, इस तरफ, अवे फ्रॉम द बॉडी इन द स्ट्रिंग. हाईएस्ट पॉइंट पे स्टोन, तो टेंशन कहां एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इन द स्ट्रिंग. वैसी इन द सेम वे व्हेन द स्टोन इज एट पॉइंट P, दिख रहा है ये आपका पॉइंट P है, व्हेन द स्टोन इज एट पॉइंट P, तो सो एट पॉइंट P टेंशन कहां एक्ट कर रहा है, T और बेस में P से दिखाया, टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इन द स्ट्रिंग. ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेट mg, पॉइंट स्टोन यहां पर है पॉइंट P पे, mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और टेंशन दिख रहा है आपको रेडियली इनवर्ड है. प्रॉपर ना. अच्छा, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, दिस इज द एंगल थीटा, इफ दिस विल बी द एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, दिख रहा है ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा. एंड इफ आई एम रिजॉल्विंग mg, तो ये क्या आएगा, जिसका थीटा mg cos थीटा एंड दिस विल बी द mg sin थीटा. mg है ये एंगल थीटा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एंगल थीटा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल. इसको मैंने रिजॉल्व किया, mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा. प्रॉपर. अच्छा, इन नॉन यूसीएम आई सेड देयर विल बी द टू एक्सेलरेशन, वन रेडियल एंड वन विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हाट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल डू, इट विल चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. हमने स्टार्ट यहां से किया था लोएस्ट पॉइंट पे, ऊपर जाते हो टाइम व्हेन द स्टोन इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, what will happen, the speed will decrease or speed will increase, the speed is going to decrease, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है ना. ऊपर ज्यादा टाइम स्पीड क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. दिख रहा है आपको vp दिखा है, वेलोसिटी एट पॉइंट P है, vm वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट, vh वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. ऊपर जाते टाइम द स्पीड ऑफ द स्टोन इज गोइंग टू डिक्रीज. अच्छा, हियर कौन यहां पर आपको पॉइंट P पे कौन स्पीड डिक्रीज कर रहा है, पार्टिकल स्टोन का स्पीड डिक्रीज कौन कर रहा है, आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर है. अच्छा, mg sin थीटा एक जो फोर्स है, आप देखो mg sin थीटा इज द फोर्स विच इज एक्चुअली एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ P. देखो vp के अपोजिट में mg sin थीटा एक्ट कर रहा है. तो अगर मैं इस पॉइंट P पे नेट फोर्स निकालू, यहां पर नेट फोर्स, यहां पर देखो फोर्स निकालेंगे, ft में टेंजेंशियल, इसका टेंजेंशियल फोर्स कितना है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स कितना है, mg sin थीटा. F का फॉर्मूला क्या आता है, ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. F का फॉर्मूला क्या है, ma. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिया क्योंकि टेंजेंट के फॉर्म में, तो mg sin थीटा लिखा मैंने, mm कैंसिल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका कितना है, g sin थीटा. हमेशा याद रखो, हियर इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज g sin थीटा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इट मींस the speed of the stone is going to decrease. velocity of particle, velocity of stone इस तरफ है और speed velocity of particle इस तरफ है, और mg sin theta tangential acceleration, we got the at, tangential acceleration is acting in the opposite direction, and we know this, when the velocity and the acceleration are in opposite direction, it means the speed of the particle is going to decrease.
सो AT का फॉर्मूला क्या है, G sin theta, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जो स्पीड डिक्रीज हो रहा है ना बिकॉज ऑफ G sin theta, प्रॉपर ना। और टेंजेंशियल फोर्स पूछेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स पॉइंट पे P पे कितना है, mg sin theta। सो यहां पर मैं इसको टेंशन को डिराइव करेंगे एवरी पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट। फर्स्ट विल डिराइव अबाउट द पॉइंट P। एट एनी पॉइंट P नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स एट एनी पॉइंट P। अगर नेट फोर्स का मैंने फॉर्मूला लगाऊं F net इज इक्वल टू ma, ठीक है। F नेट फोर्स इसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है, टेंशन इनवर्ड है, प्रॉपर। और T टेंशन के ऑपोजिट में कौन काम कर रहा है, mg cos theta। T के ऑपोजिट में काम कौन कर रहा है, mg cos theta। अच्छा, हु इज बिगर फोर्स, टेंशन एट पॉइंट P और mg cos theta। टेंशन एट पॉइंट P इज बिगर ना, बिकॉज अगर mg cos theta ज्यादा रहेगा तो स्टोन इस तरफ चले जाएगा ना, पर स्टोन इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या, स्टोन इससे स्टिक है। तो टेंशन एट P, TP इज ग्रेटर देन mg cos theta। तो मैंने अगर नेट फोर्स अगर निकालना है तो TP माइनस नेट फोर्स निकालूंगा, TP देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, TP माइनस mg cos theta करूंगा तो नेट फोर्स निकलेगा। And they are responsible for providing the necessary centripetal force to a stone। तो TP minus mg cos theta is equal to mv square by r। P लिखा हो मतलब पॉइंट P के लिए कर रहे हैं, TP लिख रहे हो मतलब टेंशन एट पॉइंट P निकाल रहे हैं, VP लिख रहे हो मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट P निकाल रहे हैं, प्रॉपर ना। सो यहां पर देखो मैंने नेट फोर्स निकाला, TP रेडियली इनवर्ड है और mg cos theta आउटवर्ड है, TP minus mg cos theta mv square by r है। They both are responsible. Their net force is responsible for providing the necessary centripetal force, which is mv square by r. Proper. Now TP कैलकुलेट करने के लिए mg cos theta मैंने उस तरफ भेज दिया, देखो mv square by r और mg cos theta वहां पर भेजा, इक्वेशन 1, ठीक है। ये पॉइंट P के लिए आ गया, बट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर लोएस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ये पॉइंट P के लिए आया है, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर लोएस्ट एंड मिडवे एंड फॉर हाईएस्ट। सो ये इक्वेशन में यूज करके, अब ये इक्वेशन आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये यूज करके आप सब जगह निकाल सकते हो। अच्छा, विच वाज द रेफरेंस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, द लोएस्ट पॉइंट ना, हियर द एंगल इज थीटा, हियर द एंगल इज 90, हियर द एंगल इज 180। जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ एंगल, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन। सो एट टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, देखो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, TP के बदले मैंने क्या लिख दिया, TL। MVP के बदले क्या लिख दिया, VP के बदले क्या लिख दिया, VL। और सब कुछ सेम रखा, mg cos theta था ना, लोएस्ट पॉइंट पे cos theta कितना है, 0, तो cos 0 विल बी m, cos 0 विल बी 1। सो व्हाट वी विल गेट, mg into 1 mg। तो ये आपका लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। अब आपको मिडवे पॉइंट पे निकालना है, थीटा कितना है, 90। सब जगह यहां पर m लिख दो और cos यहां पर कितना आएगा, 90, एंड cos 90 विल बी 0, cos 90 विल बी 0। तो आपका ये टोटल 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली इतना बचेगा, दिख रहा है आपको। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपको निकालना, हाईएस्ट पॉइंट पे व्हाट इज द थीटा, थीटा इज 180। तो यहां पर आप देखो cos 180 लिख दो और सब कुछ सेम, h यहां पर hh लिखा आपने, cos 180 कितना आ जाएगा, -1, तो माइनस mg आ गया, प्रॉपर ना। अच्छा, ये तीन इक्वेशन आप देख के बताओ कि which one is the greater, where the tension is greater, at lowest point, at midway point, at highest point, at which point the tension is greater। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर। व्हाई, देखो अगर सपोज ये टोटल अगर वैल्यू 5 है, सपोज अब एग्जांपल, ये अगर ये टोटल वैल्यू 5 है तो ये 5 प्लस समथिंग होगा, 5 प्लस mg होगा, 5 प्लस स्टोन का वेट होगा, और लोएस्ट पॉइंट पे क्या आएगा, 5 माइनस mg। तो आपको दिख रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज्यादा आएगा। कैसे, जैसे आपको सपोज इमेजिन आपने स्टोन टाइट किया स्ट्रिंग के एंड में और आपको घुमाना है, कहां पर आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, कहां पर ज्यादा टेंशन देना पड़ेगा, लोएस्ट पॉइंट पे ना। आप ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन दोगे तो ही वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा, प्रॉपर ना। आपको लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, और एक बार वो ऊपर चला गया प्रॉपर, आपने यहां पर जितना फोर्स नेसेसरी था उतना दे दिया, एक बार वो ऊपर चला गया तो वो नीचे आने ही वाला है, पर आपको एक नेसेसरी फोर्स देना पड़ेगा, नेसेसरी टेंशन देना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ताकि वो एक बार सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए इतना टेंशन आपको मिनिमम देना पड़ेगा। ये सब टेंशन मिनिमम मैंने निकाला, ये सब का सब टेंशन मिनिमम है, याद रखो। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट मिडवे पॉइंट, ये सब मिनिमम है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप इससे कम दोगे देन स्टोन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आप इससे ज्यादा दोगे तो बहुत अच्छा है, आप इससे ज्यादा टेंशन दोगे देन इट्स फाइन, बट आप अगर इससे कम दोगे, अगर टेंशन का वैल्यू इससे कम रहेगा देन इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग टेंशन को प्रॉपर्ली ड्राइव करेंगे, कितना इसका वैल्यू आएगा हर चीज का इस इक्वेशन में पुट करके। बिफोर
Before deriving the value of tension, we have to calculate the velocity. Then we will put the velocity here. Then we will get the value of proper tension. So now we are going to start to derive the velocity at different points. Here I have drawn the circle. We are going to derive the velocity at highest point, midway point, and lowest point. Before this, we have derived the tension at different points. We have got the formula of tension at lowest point, highest point, and midway point. Proper na? This is the formula which we got at lowest point, midway point, and highest point. So by using this, और आपको प्रॉपरली टेंशन का लोएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे और मिडवे पॉइंट पे, आई नो कि टेंशन का आपके टेक्स्ट बुक से बिट डिफरेंट है जैसे मैंने डेरिवेशन किया, बट वट एवर द इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन, दैट इज वेरी मच सिंपल. सो वॉच हियर, वी गोइंग टू डिराइव टेंशन वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स. वी गॉट द टेंशन लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट, और टेंशन का भी आपको प्रॉपर वैल्यू यहां से अब सब निकल जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा. ओके, तो यहां पर मैंने वापस से डायग्राम बनाया, सेम डायग्राम है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट. सपोज आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में स्ट्रिंग है, उसमें एंड में स्टोन है, आपने कहां पर ज्यादा टेंशन रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन इवन, वेयर यू हैव टू गिव द मोर टेंशन. नीचे को ज्यादा टेंशन नीचे देना पड़ेगा ना आपको, नीचे से उसको, क्योंकि रेफरेंस यही रहता है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, कोई ऊपर से थोड़ी ना स्टार्ट करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. आपको झूला झुलाते नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, नीचे से वो ढकेलते, देखो नीचे से पुश देता रहता है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वो जो झूले वाला रहता है आपको नीचे से पुश देता है, ऊपर आके पुश देता है क्या? नो, बिकॉज ही नोस कि नीचे एक सर्टेन पुश देना है ताकि ऊपर जाए, और ऊपर से तो आप नीचे आने वाले हो. तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ना बहुत कम हो जाता है, एकदम मिनिमम. प्रॉपर ना? सो हियर वी आर गोइंग टू डिराइव द मिनिमम वेलोसिटी. इन द बैंकिंग ऑफ रोड वी हैव डिराइव्ड द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी बोथ. दिस इज द डेरिवेशन वेयर वी हैव टू डिराइव द मिनिमम टेंशन एंड मिनिमम वेलोसिटी. याद रखो, मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो. यहां पर वी हैव डिराइव्ड दिस मैक्सिमम स्पीड, वहां पर मैक्सिमम स्पीड निकालते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कहां पर जा सकते हो. पर हियर वी आर डिराइविंग द मिनिमम टेंशन एंड मिनिमम वेलोसिटी, मतलब कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा. अगर आपने इससे कम दिया देन स्टोन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. रिमेंबर दिस, वॉट एवर द डेरिवेशन आई एम हियर डिराइविंग फॉर टेंशन फॉर वेलोसिटी, दैट इज फॉर मिनिमम, कम से कम. ज्यादा कितना भी दो तब तो अच्छा है, पर अगर कम उससे कर दोगे जो वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. प्रॉपर ना? सो मिनिमम टेंशन निकाला मैंने लोएस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे. अगर उससे ज्यादा टेंशन रखूंगा तो कोई इशू नहीं, दैट इज फाइन. बट अगर उससे कम टेंशन होगा देन देयर इज अ प्रॉब्लम, द स्ट्रिंग विल बी गेट स्लैकेंड. वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा. टॉट और स्लैक ऐसा दो वर्ड है, तो स्लैकेंड हो जाएगा, समझ रहे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो स्टोन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट. और ये मैं सब मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहा हूं. मिनिमम मींस कम से कम इतना आना चाहिए, इससे ज्यादा रहा तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छा. ज्यादा स्पीड दो, ज्यादा फोर्स दो, ज्यादा टेंशन दो और अच्छा है, पर इससे कम मत दो, अदरवाइज इट विल नॉट. वो देखो आपको वो झुला रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो वो नीचे की तरफ स्पीड जोर से देता है, उसको पता है कि कितना देना है, एक सर्टेन उसको गैस रहता है कि कितना मुझे स्पीड देना है ताकि इन लोग घूम के वापस से आ जाए. नहीं तो सपोज थोड़ा ही दिया, आप गए थोड़ा ऊपर तक और नीचे आ गए वापस, ऊपर से राउंड ही नहीं मारे, ऊपर गए और नीचे आ गए. समझ में आ रहा है? उसने थोड़ा सा ही सपोज ज्यादा फोर्स नहीं दिया, हल्का सा फोर्स दिया, आप गए ऊपर तक और नीचे आ गए. उसको पता है कि कितना फोर्स देना है नीचे की तरफ, और वो ऊपर नहीं आता फोर्स देने के लिए. ऊपर आता है क्या? झूले के ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर जो है हाईएस्ट पॉइंट पे ना सबसे कम फोर्स लगता है, सबसे कम टेंशन. और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कोई भी चीज को देखो ऐसे ऊपर से छोड़ दो, ऐसे ऊपर से छोड़ दो, मिनिमम कितना हो जाएगा उसके ऊपर? फोर्स मैंने कितना लगाया है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है. प्रॉपर ना? तो आपका मिनिमम टेंशन कितना दिया आपने यहां पर? 0. एट हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन कम से कम, 0 से ज्यादा हो सकता है पर 0 से कम नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए टेंशन. टेंशन नेगेटिव में जाएगा तो आपका वैल्यू तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म करेगा. कम से कम टेंशन का वैल्यू कितना ले सकता हूं मैं? एकदम सबसे कम. मिनिमम कितना ले सकता हूं? 0. ओके, सो एट हाईएस्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिराइव द वेलोसिटी. अच्छा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का ये डेरिवेशन आया. प्रॉपर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का ये डेरिवेशन आया. तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मैंने देखो क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए, 0 से कम नहीं रहना चाहिए. एकदम कम से कम आपका टेंशन कितना रहना चाहिए एट हाईएस्ट पॉइंट पे? कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहना उस पे कम से कम टेंशन कितना रहना चाहिए? 0. 0 से ज्यादा रहेगा तो देन देयर इज नो इशू. 0 से ज्यादा रहेगा तो कोई इशू नहीं है, बट अगर 0 से कम नेगेटिव में होगा देन देयर विल बी प्रॉब्लम.
the body will not be able to, or particle will not be able to perform the vertical circular motion. The tension at highest point greater than or equal to 0 रहना चाहिए। ये प्रूफ देंगे इसको, फिर आपको यहां पर इसमें मैं पुट करके बताऊंगा कैसे टेंशन 0 आ रहा है इस पॉइंट प्रॉपर। तो मैंने यहां पर मिनिमम टेंशन ले लिया, मैंने बोला आपको मिनिमम निकाल रहे हैं हम हर चीज का, कुछ मैक्सिमम नहीं, सब मिनिमम, टेंशन भी मिनिमम, वेलोसिटी भी मिनिमम। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम कितना आएगा 0, मैंने 0 अज्यूम कर लिया, एकदम कम से कम। यहां पर आप पुट करो, ये 0 में पुट करूंगा तो क्या बचेगा, देखो ये इक्वेशन बचेगा mv²h माइनस mg, mv²r माइनस mg। वेलोसिटी निकालना है ना, वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो vh को ऐसे रखो, आप इस पूरे पार्ट को यहां पर ले लो, mm विल कैंसिल, अच्छा आप इसको यहां पर लो, mg को यहां पर ले लो, mm विल कैंसिल और r वहां चले जाएगा, तो vh वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, rg कितना आ जाएगा, रूट rg। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, रूट rg, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट रूट rg। अब देखो यहां पर सपोज मैं rg यहां पर पुट करूं, देखो यहां पर rg पुट करूं, ये रूट rg, तो ये rg बचेगा, r कैंसिल, mg माइनस mg। देखो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, 0 प्रॉपर ना। अब यहां पर ध्यान दो, दिस इज ऑल रिलेटिव। अगर सपोज टेंशन मिनिमम 0 नहीं 1 है, सपोज 0 नहीं है 1 है, तो ये क्या rg आएगा, नो, इट विल नॉट कम सेम, क्योंकि टेंशन आपका ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। आपने ज्यादा फोर्स दिया, ज्यादा टेंशन दिया, ज्यादा जोर से झूले वाले ने स्पीड दिया, फोर्स दिया नीचे, तो आप ज्यादा स्पीड से ऊपर जाओगे, बराबर ना। पर ये rg मींस, ये रूट rg मींस इतना तो कम से कम ऊपर रहना ही चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, इससे कम नहीं रहेगा। अगर इससे कम होता है रूट rg से वैल्यू अगर ऊपर कम होता है, देन द बॉडी और पार्टिकल विल नॉट परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऑलवेज रिमेंबर, मिनिमम मैंने निकाला है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये दोनों इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है इन लोग, कि अगर ये वेलोसिटी अगर ज्यादा रहेगा मिनिमम पॉइंट पे, तो सॉरी टेंशन अगर ज्यादा रहेगा मिनिमम पॉइंट पे, तो वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो एट लोएस्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ। मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे निकाला, अब लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में क्या सेम है दोनों? हाईएस्ट पॉइंट पे था पार्टिकल ऐसा आया, अब लोएस्ट पॉइंट पे क्या सेम है बताओ? व्हाट इज सेम इन नॉन यूसीएम? there is total energy is same at highest point and lowest point. Total energy at every point are same. Kinetic and potential energy are not same, but the total energy are same because it have to follow the law of conservation of energy ना। ये किसके अंडर में ये प्रोसेस हो रहा है? हाँ, किसके अंडर में ये टोटल प्रोसेस हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इट हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज हियर एनर्जी इज नॉट गेटिंग वेस्ट. So tension at highest point, velocity at highest, tension at highest point, and sorry, energy at highest point, total energy at highest point and total energy at lowest point are same. ये connecting bridge है highest और lowest का, और कुछ भी same नहीं है. Velocity different, tension different, proper है. tension highest पे एकदम कम से कम और lowest पे हमने देखा है प्लस mg आ रहा है. देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये सबका सेम है, प्लस mg मतलब कुछ तो समथिंग प्लस होने वाला है. 5 प्लस 1 6 1 है सपोज, ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा. ये 5, आप ये सबका वैल्यू 5 ले लो, कोई भी एक वैल्यू लेके करोगे आप माइंड में कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम है और मिनिमम पे सबसे ज्यादा, वेलोसिटी अलग. तो क्या सेम है दोनों में? टोटल एनर्जी सेम. तो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हाफ mvl स्क्वायर, vl लिख रहा हूं वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, vh लिखता हूं मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है लोएस्ट पॉइंट पे? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? mgh. तो मैं mgh अगर लगाऊं, mg तो है पर व्हाट इज द h? और यही रेफरेंस है, यहीं से स्टार्ट किया था मैंने लोएस्ट पॉइंट से. दिस इज द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180. दिस वाज द रेफरेंस ना. सो यहां पर h कितना आ रहा है? यहां पर जब स्टोन है तो h कितना आ रहा है? यहीं से स्टार्ट किया था मैंने. h तो 0 है ना, क्योंकि हाइट पे गया ही नहीं ना पत्थर, अभी स्टोन अभी गया ही नहीं हाइट पे. तो h कितना आ रहा है? 0. तो mgh इंटू 0 करूंगा तो टोटल विल बी 0. सो पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट व्हाट इज? इट इज 0. काइनेटिक एनर्जी लिखा. नाउ काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट फॉर्मूला लिखा मैंने हाफ mvh स्क्वायर. नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ये रेफरेंस ये था मेरा. अब यहां पर स्टोन है. What is the height when the stone is at height h from lowest point? यहां से आपका रेफरेंस है. हाइट कितना है स्टोन का भी? r प्लस r, r और r ना डायमीटर हो रहा है तो 2r हो जाएगा.
हाइट कितना है 2r, तो mg इंटू 2r, दिस इज द HIMGH पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. सो हियर आप इसको बैलेंस करो, इसको भी आप देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, हाफ हाफ लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आप 1/2 कॉमन निकालोगे, कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल रिमेन, VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 mgr विल रिमेन. mm कैंसिल हो रहा है सब जगह से, और हाफ हाफ यहां से कैलकुलेट कर दिया मैंने क्या. सो VH का वैल्यू भी नो ना, VH का रूट RG आप यहां पर पुट करो, रूट RG पुट करोगे तो RG बचेगा 4RGR प्लस GR 5RGR, तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट विल बी रूट 5GR, वेलोसिटी एट lowest point. So we have got the formula of velocity at lowest point is root 5gr. आप इसको कैलकुलेट करोगे, you will get the formula of root 5gr. Now if you have to calculate the tension at lowest point, this is the minimum velocity, huh? Always remember we are all calculating the minimum, everything minimum, proper na? Minimum velocity at lowest point, और ये minimum velocity at highest point. Now if you have to calculate the tension at lowest point, we have got the formula of this, no? Put this VL here, root 5gr है ना, आप यहां पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 5gr आप पुट करोगे, स्क्वायर रूट हटा दोगे, 5gr आएगा, RR will cancel, 5mg plus mg, what you will get, tension at lowest point, minimum tension at lowest point, you are going to get the formula of, you are going to get the value of 6 mg, को आप इसमें पुट करके देखोगे ना, you will get the value of 6 mg. दैट इज द मिनिमम टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट. ये सब मिनिमम निकाल रहा हूं. अच्छा, इससे ज्यादा रहेगा रूट 6gr, रूट 7gr, देन तो और अच्छा है. इससे ज्यादा रहेगा तो और अच्छा है, 6mgr 7mgr 8gr, देन देयर इज नो इशू. बट अगर इससे कम होगा, वेलोसिटी आपने नीचे के पॉइंट पे इससे कम दिया, वो झूले वाले ने नीचे के पॉइंट पे इससे कम वेलोसिटी दिया रूट 5gr से, देन the body, that the whole process will not be able to complete, that will not be able to perform the vertical circular motion. इतना वेलोसिटी कम से कम देना है, इससे ज्यादा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और अच्छा, अगर ये 6gr आएगा तो टेंशन विल बी व्हाट, 6 mg, नो. अगर ये 6gr आएगा तो टेंशन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस ना. आप यहां पर 6gr पुट करोगे तो यू विल गेट द 7 mg ना. ये दोनों इंटररिलेटेड है, टेंशन और वेलोसिटी. अगर टेंशन ज्यादा है तो वेलोसिटी अगर ज्यादा है लोएस्ट पॉइंट पर तो टेंशन भी ज्यादा रहेगा. पर मिनिमम के लिए निकाल रहे हैं, मतलब इतना लीस्ट रहना चाहिए. ओके, नाउ एट मिडवे पॉइंट वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट. नाउ लोएस्ट पॉइंट और मिडवे पॉइंट पे भी व्हाट इज द सेम, व्हाट इज द कनेक्टिंग ब्रिज, total energy at lowest point and total energy at midway point are same, because they have to follow the law of conservation of energy na. So I have used the same formula, see, kinetic energy plus potential energy, kinetic energy plus potential energy, lowest point and midway point. So lowest point पे kinetic energy का फॉर्मूला मैंने लिखा, potential energy का देखो रेफरेंस 0 आया, तो देखो यही फॉर्मूला मैंने सेम लिख दिया. lowest point का potential energy 0 आया था ना, हाइट नहीं है ना रेफरेंस के अकॉर्डिंग. और मिडवे पॉइंट पे सेम मैंने यूज किया, हाइट कितना आ रहा है मिडवे पॉइंट पे, हाइट कितना आ रहा है, r हाइट है ना, रेडियस कितना है r, सो mgh के बदले मैंने क्या लिख दिया, r. नाउ इसको भी आप बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर आप करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो 1/2 आप कॉमन निकालो, mm कैंसिल करो, 1/2 कैंसिल करो, यू विल गेट दिस VL इज इक्वल टू VM स्क्वायर प्लस 2gr. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ VL, यू हैव टू कैलकुलेट द VM ना, VM को इस साइड रखो, 2gr को इस तरफ लेके जाओ, VL का वैल्यू देखो रूट 5gr, ठीक है. स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट कर दोगे तो 5gr आएगा, 5gr माइनस 2gr, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 3gr. स्क्वायर रूट हटाओगे, VM इज इक्वल टू रूट 3gr. जस्ट यू हैव टू डू द बेसिक कैलकुलेशन हियर, प्रॉपर ना. सो वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट, एट मिड पोजीशन दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी. अगर इससे ज्यादा रहेगा देन देयर इज नो इशू, बट इससे कम नहीं होना चाहिए. मिनिमम वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट इज रूट 3gr, minimum velocity. So minimum velocity at midway point is root 3gr. इससे कम रहेगा तो नहीं चलेगा, इससे ज्यादा रहेगा 4gr 5gr, then it will be same. अच्छा, now you have to calculate the tension at midway point. Put here root 3gr. What you are going to get? RR will cancel, you will get 3 mg. प्रॉपर ना, you are going to get the tension at midway point is equal to 3 mg. तो आपको हर पॉइंट पे आ गया टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 6 mg, टेंशन एट lower, tension at highest point 0, tension at lowest point 6 mg, tension at midway point 3 mg. प्रॉपर ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट
6 mg, tension at highest point 0, tension at midway point 3 mg. This is the minimum tension we have calculated, not maximum. This is the minimum tension, मतलब इतना कम से कम रहेगा for performing the vertical circummotion. इससे ज्यादा हो सकता है, वो चलेगा, और टेंशन ज्यादा तो वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे ज्यादा रहेगा. ये सब भी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं, because we have calculated for the least. Proper ना? Okay. Now I will give one example for clearing the concept of this. Proper? So here is the spear of death. Okay, we have studied about the vertical circular motion, lowest point, minimum velocity at lowest point, midway point and highest point, and tension at minimum tension at lowest point, midway point and highest point. So here is an example, आपको समझ में आएगा what is actually it, where it is going to used. So यहाँ एक spear of death है, सर्कस में देखते हो, एक बाइकर है, ये बाइकर लोएस्ट पॉइंट से, बाइक यहाँ लोएस्ट पॉइंट से मिडवे और हाईएस्ट ऐसा घूमता है ना, और रिमेंबर दिस, ये इनर सरफेस में घूम रहा है, इनर सरफेस ऑफ द लेयर, जो मेन जो इनर सरफेस पे घूम रहा है, ये जो सर्कमफरेंस है ना उसके इनर सरफेस पे घूम रहा है. आपके टेक्स्ट बुक में और एक डायग्राम है, दैट इज द आउटर सरफेस. ये डायग्राम सेम ही है, ये इनर सरफेस में घूम रहा है, अंदर की तरफ घूमता है. उस स्पीयर ऑफ डेथ में अंदर की तरफ घूमता रहता है ना, कि बाहर की तरफ घूमता है, बाहर थोड़ी ना आगे घूमता है. सो ये इनर सरफेस में घूम रहा है बाइकर, इनर सरफेस में अंदर की तरफ है, सर्कमफरेंस के ऊपर नहीं है, इनर सरफेस ऑफ द सर्कमफरेंस, आउटर सरफेस ऑफ द सर्कमफरेंस नहीं है. ओके, सो वी गॉट द वेलोसिटी, लोएस्ट वेलोसिटी रूट 5g आ रहा है, रूट 3g आ रहा है हाईएस्ट पे, और हाईएस्ट पे रूट rg आ रहा है, मिडवे पे रूट 3rg. अच्छा, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, उसको बाइकर को हर बार ये नेसेसरी है कि चेक करना कि अभी लोएस्ट आ गया तो रूट 5gr पे रू, हाईएस्ट आ गया तो रूट 3gr पे रू, कि और मिडवे आ गया तो रूट gr पे रू. हर बार नेसेसरी कि वो खाली एक बार याद रखो, क्योंकि वो नीचे से जाने वाला है ना, इसलिए मैंने लोएस्ट को रेफरेंस लिया था. नीचे से स्टार्ट करेगा ना, तो वो एक ही बार देख ले कि मैं इतना प्रोवाइड कर दूं, नीचे वेलोसिटी रूट 5gr प्रोवाइड कर दूं, फिर उसके बाद अपने आप बैलेंस मेंटेन हो जाएगा. खाली ये इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बाइकर को सिर्फ एक चीज देखना है कि वो लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5gr स्पीड प्रोवाइड करे. बाइक को रूट 5gr, देखो वो लोग कंटिन्यू एक्सेलरेट करते रहते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइकर टू वॉच दैट द स्पीड लिमिट ऑफ दिस शुड बी मेंटेन एट द लोएस्ट पॉइंट. एक बार ये मेंटेन हो जाएगा तो मिडवे और हाईएस्ट पे अपने आप मेंटेन हो जाएगा. सो बाइकर के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि वो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड को देखे कि इतना स्पीड कम से कम रहे या इससे ज्यादा रहे, इससे कम ना रहे, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. इससे ज्यादा रहे, एक बार इतना या इससे ज्यादा रहेगा तो वो मिडवे पे और हाईएस्ट पे इतना स्पीड जितना भी नेसेसरी उतना मिल ही जाएगा. अगर इधर पे रूट 5gr दे दिया ना तो अपने आप मिडवे पे रूट 3gr और यहां पर रूट gr उससे मिलेगा. और उन लोग एक ही बार एक्सेलरेट कर देते हैं तो उनको पता चल जाता है. देखो फिर उन लोग बैलेंस करने के लिए बाइक का हैंडल छोड़ देते हैं, वो नोट लेते रहते हैं. आप देखो खड़े रहोगे तो नोट लेते रहते हैं, बाइक का हैंडल छोड़ देते हैं, बिकॉज दे नो दे हैव मेंटेन द स्पीड लिमिट ऑफ रूट 5gr एट द लोएस्ट पॉइंट. सो दे नो दे कांट बी फॉल. नाउ लिसन, बाइकर हाईएस्ट पॉइंट पे, सपोज कोई भी पॉइंट पे, who is providing according to us, अच्छा we are in inertial frame of reference, according to us, suppose बाइकर यहां पर है, according to us the weight mg, अच्छा mg भी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे है. यहां पर ध्यान दो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नहीं है, बिकॉज मैं बोला ये इनर सरफेस में है, इनर सरफेस ऑफ द सर्कमफरेंस में. आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम अलग है, वो आउटर सरफेस का डायग्राम बनाया गया, ये इनर सरफेस का मैंने डायग्राम बनाया, अंदर घूम रहे हो. mg भी नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे ही है, ऊपर नहीं है कुछ भी, अपर मोस्ट पॉइंट पे. तो हियर अकॉर्डिंग टू अस we are in inertial frame of reference, mg is providing the necessary centripetal force for the circular motion of a biker. But according to biker, अच्छा biker is in inertial frame of reference or non-inertial? Biker is in non-inertial frame of reference. According to the biker, mg is providing the centrifugal force. mg is providing the necessary centrifugal force which is helping the biker that he should not fall, which is balancing the biker that he should not fall. mg centrifugal force provide कर रहा है बाइकर के हिसाब से, बाइकर के अकॉर्डिंग, because he is non-inertial, because he is in non-inertial frame of reference ना. According to biker, mg is providing the necessary centrifugal force, that pseudo force जो maintain कर रहा है बाइकर को नहीं गिरने से. But according to us, because we are in inertial frame of reference, we feel that mg is providing the necessary centripetal force. अच्छा, now listen, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कॉन्टैक्ट लूज होने वाला रहता है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज होने, नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0. और ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर रहती है गिरने की, नीचे रहेगी कि ऊपर रहेगी, ये बीच में रहेगी,
ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर रहती है, ऊपर रहता है कि कॉन्टेक्ट लूज होता है, यहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा रिस्क यहीं पर रहता है। समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा से ज्यादा रिस्क आप देखो जब ऊपर जाएगा ना झूला तो आपको ज्यादा डर लगता है। समझ में आ रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तब आपको ज्यादा है, नीचे से आपको ज्यादा नहीं लगेगा। जब ऊपर जाता रहता है ना वहां पर ज्यादा चांसेस रहता है कि आपको ऐसा लगता है कि गिर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वहां पर रॉड लगा है तो सेफ्टी है। बट याद रखो हर चीज में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा कॉन्टेक्ट लूज होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम रहती है। तो यहां पर मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे कॉन्टेक्ट लूज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सपोज करता हूं मैं एकदम मिनिमम अगर मैं कॉन्टेक्ट सोचूं यहां पर लूज होने का, उस प्रोबेबिलिटी को चेक करूं तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे क्या लेना पड़ेगा यहां पर 0। सो इफ n इज 0, अगर n 0 हो गया देन mg जो है उसका वेट वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है व्हेन वी आर वाचिंग फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया जहां कॉन्टेक्ट लूज होने का, जब भी कोई चीज का कॉन्टेक्ट, और हमेशा ऐसा रहता है कि टॉप पे कॉन्टेक्ट लूज होने का प्रोबेबिलिटी रहता है ज्यादा। n को मैं 0 लेके सॉल्व कर रहा हूं, एकदम 0 नहीं रहता। जैसे मैंने टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 लिया था स्ट्रिंग में, कभी टेंशन 0 नहीं होता, याद रखो टेंशन 0 होता ही नहीं है, वो बहुत कम उसका वैल्यू होता है, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसको 0 लेके सॉल्व किया जा रहा है फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, फॉर गेटिंग द मैथमेटिकल इक्वेशन। कभी टेंशन 0 मींस स्ट्रिंग स्लैकेंड हो गया, स्ट्रिंग स्लैकेंड होगा तो फिर घूमेगा ही नहीं ना, स्ट्रिंग स्लैकेंड हो गया तो घूमेगा ही नहीं। तो टेंशन 0 जस्ट क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहता है कि अपर मोस्ट पॉइंट पे कॉन्टैक्ट लूज हो, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाए, टेंशन कम हो जाए, तो इसीलिए ऐसा उसको 0 लेके सॉल्व करते हैं। मिनिमम कर रहे हैं ना, तो इसलिए मिनिमम 0 हो गया, एकदम कम से कम हो गया, 0 हो गया, ये लेके सॉल्व किया गया है। तो अगर 0 भी हो जाएगा तो mg जो है यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये गिरेगा नहीं, और वो आपका स्टोन जो है प्रॉपर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। बाइकर को अगर उसका नॉर्मल रिएक्शन जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा उसका 0 भी हो जाएगा तो mg विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ही विल नॉट फॉल। प्रॉपर ना? तो इसीलिए इसको मैंने एकदम कम से कम पे लेके किया, n इज इक्वल टू 0 कर दूं तो mg इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर आई हैव रिटन द पंच पॉइंट अकॉर्डिंग टू अस वेट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, fcp, fcp necessary centripetal force, but according to Biker mg means weight is balancing the centrifugal force, मतलब उसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर और mg अंदर, उसको हर पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू बाइकर mg बैलेंस कर रहा है, उसका वेट बैलेंस कर रहा है प्रॉपर ना। अगर वेट डिसबैलेंस हो जाएगा तो गिर जाएगा। हियर वी हैव द न्यू केस मास टाइड टू द रॉड। इन द प्रीवियस केस स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस कर दिया? रॉड्स। स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे देना नेसेसरी था, रिमेंबर हाँ, स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे जरूरी है क्योंकि वो आपको टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट रख के सॉल्व करते थे ना मिनिमम पे, दैट इज लाइक कि आपको इक्वेशन मिल जाए प्रॉपर ना, क्योंकि टेंशन कभी 0 एग्जैक्टली प्रॉपर 0 होता ही नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो स्ट्रिंग स्लैकेंड हो जाएगा ना। पर मिनिमम टेंशन निकालने के लिए हम लोग लूज कॉन्टैक्ट हो एट हाईएस्ट पॉइंट पे जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है लूज कॉन्टैक्ट होने के लिए, इसलिए उसको टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे 0 रख के सॉल्व किया गया है। बट ये तो रॉड है, दिस इज रिजिड ना, ये तो स्लैकेंड नहीं होगा, नो चांस। तो आपको यहां पर टेंशन को कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको एक चीज को देखना है, यहां पर जो है वेलोसिटी। अच्छा यहां पर वेलोसिटी कितने आता है स्ट्रिंग में हाईएस्ट पॉइंट पे? √rg। बट यहां पर रॉड में अगर सपोज मैंने एकदम से वेलोसिटी कम कर दिया, यहां पर एक प्रॉपर लिमिट दिया है, यहां पर एकदम मिनिमम वेलोसिटी कितना आता है रॉड के केस में? 0। मिनिमम वेलोसिटी रॉड के केस में कितना आएगा? 0। 0 भी रखूंगा तो भी ये रॉड गिर जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने एक लिमिट दे दिया ना, जितना लिमिट चाहिए वो एक बार यहां पर दे दिया, तो यहां पर 0 भी रखूंगा तो भी गिर जाएगा प्रॉपर ना। सो सी हियर, ये रॉड है, रॉड के एंड में एक स्टोन टाइट कर दिया, ऐसे घूम रहा है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। मैंने क्या बोला? मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट रॉड में कितना रहेगा? 0। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट और मिडवे हमें निकालना है, रिमेंबर दिस। you have studied about the work energy theorem in the 11th standard ना, work done by all forces equal to change in kinetic energy। यहां से हमने स्टार्ट किया, रेफरेंस यहां से था, यहां पर स्टोन है, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है प्रॉपर ना, तो फोर्स यहां पर है और इसको लेके कहां जाना है? ये इसका इनिशियल पोजीशन है, फाइनल कहां लेके आना है? ऊपर लेके आना है, क्योंकि हमको इसका वैल्यू पता है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर लेके गया। अच्छा कितना डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? r प्लस r ना, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट 2r ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो देखो F डॉट एस करके आप निकालोगे, F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा कितना बन रहा है? 180 ना, कॉस 180 कितना होता है? -1
तो माइनस एफ और एस कितना है, आर प्लस आर, 2r। देखो माइनस एफ और एस, माइनस एफ एस करके निकाला है, याद रखो। कॉस 180 बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है 180, कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस mg 2r। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये इनिशियल है, ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये फाइनल। यहां से स्टार्ट किया ना, ये रेफरेंस था ना, ये फाइनल पोजीशन है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल का क्या आएगा, हाफ mvh स्क्वायर। देखो हाफ mvh स्क्वायर, और इनिशियल का हाफ mvl स्क्वायर। ये लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट, हाफ mvh स्क्वायर माइनस हाफ mvl स्क्वायर। h का मेरे को वेलोसिटी कितना पता है, हमें कितना पता है हाईएस्ट पॉइंट पे, रॉड के केस में वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना रहेगा, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट रॉड के केस में कितना रहेगा, 0। तो vh कितना हो जाएगा, 0। तो ये टोटल 0, तो खाली यहां पर ये बचेगा हाफ माइनस mvl स्क्वायर, माइनस एंड माइनस विल कैंसिल, m एंड m विल कैंसिल, दिस 2 विल गो हियर, कितना आ जाएगा 4gr। तो vl का वैल्यू कितना आ जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √4gr। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, √4gr। प्रॉपर ना, मींस हाईएस्ट पॉइंट पे आपको मिल गया 0, लोएस्ट पॉइंट पे √4gr, मिडवे पे निकालना है। अब इनिशियल ये है और फाइनल ये है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, r ना, तो यहां पर कितना रख दोगे आप, r प्रॉपर, और सब कुछ सेम रहेगा। r रख के अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये mgr हो जाएगा, और यहां पर ये 2 था वो नहीं आएगा एक्स्ट्रा, तो यहां पर बचेगा वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट कितना बचेगा, √2gr। वेट यहां पर लिख देता हूं, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट कितना आएगा, आप इसी तरीके से सेम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके प्रूफ करो। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, डिस्प्लेसमेंट इज r माइनस mgr आएगा, खाली यहां पर एक 2 नहीं आएगा बस, एंड कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट इज 2gr। मिनिमम, दिस इज ऑल मिनिमम, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ऑल मिनिमम। इससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर, ये √4gr, ये √2gr और ये 0। उसमें कितना था स्ट्रिंग में, √5gr, √3gr और √gr, दो से कम होते गया, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। प्रॉपर है, ओके। So here is one derivation, vehicle at the top of the convex cover bridge. This is a new derivation which is given in your textbook. In the previous textbook ये नहीं था आपको ये derivation, very simple derivation. अच्छा, we discuss about the last derivation, we discuss about the inner surface of the that sphere of death. Proper ना? In that biker was moving in the inner surface of that sphere of death. We discuss about the when the rod, when the mass is tied at the end of the rod, we discuss about that. Velocity at highest point, velocity at lowest point, velocity at midway point. We in the string we discuss about the velocity at highest point was √rg, at lowest point was √5rg, and at midway point was √3rg. Proper. So here is even same derivation. एक ब्रिज है आपके टेक्स्ट बुक में, ये नया है, थोड़ा सा देख लो आप। एक ब्रिज है, यहां पर जो व्हीकल है वो इनर सरफेस ऑफ द सर्कमफ्रेंस नहीं है। जैसे बाइकर मौत के कुएं में वो इनर सरफेस पे घूम रहा था ना, तो नॉर्मल नीचे की तरफ था वो इनर सरफेस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे था और mg भी नीचे था। प्रॉपर ना, दैट mg वाज प्रोवाइडिंग एट द अपर मोस्ट पॉइंट व्हेन फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन वाज 0, देन इवन द mg वाज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रॉपर ना, फॉर मेंटेनिंग, फॉर परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, दैट mg वाज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बट हियर व्हीकल जो है ये ब्रिज के आउटर सरफेस ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे, देख रहे हैं, पहले इनर सरफेस में मैंने डायग्राम बनाया था, अभी आउटर सरफेस ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा है। व्हीकल जो है आउटर सरफेस ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा है। देन व्हाट विल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, mg विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड। इन द लास्ट डायग्राम mg was even downward, normal reaction was even downward, and they both were responsible for providing the necessary centripetal force. But here mg and normal reaction are different because ये ऊपर घूम रहा है, नीचे की तरफ नहीं। ये वो वेल ऑफ डेथ की स्पीड ऑफ डेथ की तरह नहीं है, ये ऊपर घूम रहा है। ब्रिज एक टाइप ऑफ ऊपर चल रहा है गाड़ी ऐसे, तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। प्रॉपर ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिल रहे हैं। सो अगर इसका मैं टोटल फॉर्मूला निकालूंगा, इसको टोटल इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अच्छा, ये mg माइनस मैंने क्यों लिखा, बिकॉज mg इज ग्रेटर। mg माइनस n, ये गाड़ी स्टिक है ना, अभी देख रहे हैं, ये ब्रिज के ऊपर स्टिक है, उड़ नहीं गए, स्टिक है, मीन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसे बाइंड करके रखा है। बाइंड करके रखा है मतलब इस तरफ फोर्स ज्यादा है,
mg की तरफ फोर्स ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स mg की तरफ फोर्स ज्यादा है, तो mg माइनस n नेट फोर्स आएगा। ये नेट फोर्स जो है इसने बाइंड करके रखा है, ये प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इसका नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाई आर को। अच्छा, एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल, मैंने आपको बताया कि कहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है दैट व्हीकल कैन लूज द कॉन्टैक्ट। एट द अपर मोस्ट पॉइंट देयर इज ए ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल कैन लूज द कॉन्टैक्ट, सो एट दैट पॉइंट वी यूज टू टेक फॉर कैलकुलेटिंग द इक्वेशन, फॉर डिराइविंग द डेरिवेशन, वी यूज टू टेक एट अपर मोस्ट पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो। पूरा नॉर्मल रिएक्शन कभी जीरो नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर दिस। जस्ट टू कैलकुलेट the derivation, to form the equation, we used to take at the uppermost point, we used to take the normal reaction is equal to zero, because वहां probability, वहां पर contact lose होने का chances ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा chances वहीं पर रहता है, बराबर ना। तो वहां पर सबसे ज्यादा chances रहता है, इसीलिए वहां पर normal reaction और lose contact होना मतलब normal reaction क्या हो जाना, zero। So therefore at the uppermost point, Therefore, at the uppermost point, for just maintaining the contact, normal reaction is equal to zero. Here I will put n is equal to zero. What I will get, mg is equal to mv square by r. Mm will cancel. V will is equal to root rg. Proper. This we have already derived. In the case of a string, velocity at highest point was what? Root rg. This is the minimum velocity which we have to maintain at the bridge, convex bridge even. इतना ही आपको velocity maintain करना रहेगा. This all we have derived for the minimum. Always remember this. इससे ज्यादा हो सकता है कि नहीं, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, 2 rg, 2 root rg, 3 root rg, 4 root rg, whatever. But if it will be less than root rg, then it will not be able to perform the circular motion, it will skid off or it will perform projectile motion. Getting or not? Okay, fine.